welcome to Basics Marine Electricals and Marine Electrical Technology lecture series. This is our second lectures on Basics Marine Electricals and Marine Electrical Technology. In this lectures, we will going to discuss about what are some important components or what are some important parameters which is mostly always and frequently asked by interviewer or surveyor. What is active power? What is reactive power? Okay, what is actually apparent power? What is power factor? Suppose in onboard ships, there is one maybe single phase induction motor or three phase induction motor, because that large centrifugal pump which is coupled with electrical motor. Okay, and you observe that the power factors of that specific electrical motor is 0.85, maybe at a no load 0.2. Okay, maybe 0.7. So actually what all these power factors indicates, what does it mean? What is actually mean that power factor equal to 0.85? Okay, so this is mostly asked questions in interview, and how to represent this answer आज मैं उस पर बात करूंगा. Okay, suppose in interviewer generally ask you what is power factor. Okay, and आप अगर इस आंसर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो like power factor is the angle between voltage and current. Yes, definitions may be true, but this is not a technical way to answer this question. Okay, so in this lectures we will focus on what is power factor and it is related with means actual definition. And yes, and last में मैं आपको बताऊंगा एक ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करूंगा, वहां पर मैं आपको कंपोनेंट्स के साथ सिर्फ एप्लीकेशंस से रिलेट करूंगा एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर्स को. Okay, so without wasting much time, let's discuss our lecture. So first of all, what is electric field? Okay, सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर बात करूंगा. Okay, what is electric field? अगर मैं इसकी डेफिनेशंस बोलूं, एक टेक्निकल डेफिनेशंस पर बात करूं, so electric field is what? Okay, it is defined as space. Electric field is defined as a space or field, okay, around the source charge. Okay, around the source charge in which electrostatic force of attraction and repulsion is experienced when any other charge is come into that existing field. Okay, this is what called electric field. Okay, मैं इसे आपको एक जनरल लाइफ से समझाता हूं. मैंने स्टार्टिंग में इसकी डेफिनेशंस क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज ए स्पेस और फील्ड. इट इज ए स्पेस और फील्ड around a source charge. Means what? Suppose आप मेरे मरीन इंजीनियरिंग एजुकेशनल यूट्यूब चैनल डेली बेसिस पर देखते हो. ओके, तो एक्चुअली इट इज व्हाट आई हैव क्रिएटेड माय ओन मरीन इंजीनियरिंग एजुकेशनल यूट्यूब चैनल नेम्ड एज मरीन ट्यूटर. मरीन ट्यूटर इज अ फील्ड और स्पेस, ओके, around a source charge. Who is source charge here? Who is source charge here? Me, because I delivered the lecture. ओके, सो मैं क्या हूं यहां पर? मैं सोर्स चार्ज हूं और मैं एक फील्ड क्रिएट किया हूं, एंड दैट फील्ड इज व्हाट? डिस्कशन प्लेटफॉर्म. ओके, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? दिस इज 12th में ऐसा कुछ देखे होंगे, है ना? दिस इज व्हाट कॉल्ड सोर्स चार्ज. ओके, दिस इज स्पेस और फील्ड. लाइक मरीन ट्यूटर क्रिएट्स अ प्लेटफॉर्म. Okay, Marine Engineering Educational YouTube channel is a platform, means it is a space or field. Okay, and source charge is present there. Okay, this is a space or field. A source charge is present. Okay, source charge here, me, I am a source charge and I am creating a field, a discussion platform with you all. Okay, so this is a source charge and this is field. Now our next sentence is, first sentence that is clear, it is a space or field around the source charge. Okay, I am a source charge. Around me I have created a space or platform of my educational YouTube channel. Okay, clear? Now next is what? In which electrostatic force of attraction and repulsion is experienced. Now you people suppose, okay, मैं ये चार्ज 1 कंसिडर कर रहा हूं एंड ये चार्ज 2. नाउ आप चार्ज 2, यू ऑल आर चार्ज 2. ओके, अगर आप इस फील्ड में अगर आप आना चाहते हो, मीन्स व्हाट,
आपको चैनल सब्सक्राइब करनी होगी, ओके आपको चैनल लाइक्स करनी होगी, तो आपको क्या है नोटिफिकेशन आएगी। ओके अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो, इस डिस्कशन प्लेटफॉर्म में आना चाहते हो, तो ये क्या है, अट्रैक्शन है। ओके आप अट्रैक्ट हो रहे हो। अगर आपको मैं अच्छा लगा, मेरी टीचिंग क्वालिटी अच्छी लगी, तो आप मुझसे अट्रैक्ट हो रहे हो। ओके तो ये चार्ज क्या है, अट्रैक्ट होगी। ओके सो सोर्स चार्ज मी एंड चार्ज टू यू। ओके आप सभी चार्ज टू हो, तो यहां पर एक अट्रैक्शन होगी। ओके सो लास्ट सेंटेंस मेरी क्या थी, ओके व्हेन एनी अदर चार्ज कम इनटू दिस फील्ड। ओके अगर कोई अदर चार्ज इस फील्ड में आएगी तो दोनों में क्या होगी, अट्रैक्शंस होगी। ओके एंड यस रिपल्सन्स भी होगी। ये अट्रैक्शंस कब होगी, जब ये हमारी नेगेटिव चार्ज होगी, एंड रिपल्सन्स कब होगी, जब हमारी पॉजिटिव चार्ज होगी। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्ज रिपल्स ईच अदर। क्लास 8 7th 8th थ्योरी। ओके इतने क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, हाउ कैन वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इन इंटरव्यू, इट इज डिफाइंड एज ए स्पेस और फील्ड अराउंड अ सोर्स चार्ज, अराउंड अ सोर्स चार्ज इट इज ए स्पेस और फील्ड। okay it is a space or field in which electrostatic force of attraction between these two charges, there is electrostatic force of attraction which may be repulsions or attractions। okay and if any other charge come into this field, अगर कोई चार्ज इस फील्ड के अंदर आता है तो वहां अट्रैक्शंस भी हो सकती है, रिपल्शंस भी हो सकती है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्लियर है। नाउ कम इनटू नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज एक्टिव पावर। ओके हम बात करेंगे व्हाट इज एक्टिव पावर। सो इन लास्ट लेक्चर्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज पॉजिटिव पावर एंड व्हाट इज नेगेटिव पावर। सो व्हाट इज पॉजिटिव पावर, पावर इज फ्लोइंग फ्रॉम सोर्स टू लोड, power is flowing from source to load, that is called positive power। and what is negative power, power which is flowing from load to source, it's called negative power। what is positive power, power is flowing from source to load। source is what, source means your main generator on board ships, आपकी on board ships की जो main generator है that is only called source। and what are loads, डिफरेंट लोड्स। आपकी मेन जनरेटर से हमारी इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, लो वोल्टेज सिस्टम, हाई वोल्टेज सिस्टम। ओके सारी चीजें हम बात करेंगे फ्यूचर वीडियोस में। ओके तो हमारी क्या हो रही है, मेन जनरेटर से हमारी क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, एंड दैट इलेक्ट्रिसिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम डिफरेंट लोड, दैट इज मे बी इंडक्टिव लोड, मे बी कैपेसिटिव लोड, मे बी रेजिस्टिव लोड। ओके अगर मैं रेजिस्टिव लोड की बात करूं तो नेविगेशनल लाइट्स, okay navigational light, this is what called resistive load। okay and electrical heaters, why electrical heaters is used on board ships, why electrical heater is used for heating the lube oil and fuel oil to reduce the viscosity, okay for better atomizations। okay ये मैंने आपको सारी मैम में बता दिया है। okay तो इलेक्ट्रिकल हीटर्स भी हमारी यूज होती है, वो भी हमारी क्या है, रेजिस्टिव लोड्स है। तो लोड्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं ऑन बोर्ड शिप्स में। फर्स्ट वन इज रेजिस्टिव लोड, सेकेंड वन इज इंडक्टिव लोड, एंड थर्ड वन इज कैपेसिटिव लोड। ओके सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज रेजिस्टिव लोड। नाउ एग्जांपल्स आप लोगों ने देखा, नेविगेशनल लाइट्स एंड इलेक्ट्रिकल हीटर्स आर, दीज ऑल आर रेजिस्टिव लोड। अगर मैं रेजिस्टिव लोड को आपको वेव फॉर्म से समझाऊं, ओके सपोज दिस इज व्हाट कॉल्ड करंट वेव फॉर्म, साइनसॉइडल वेवफॉर्म, दैट इज इन एसी। हम एसी के टर्म में बात कर रहे हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था हम लोग यहाँ पर एसी के टर्म में बात करेंगे। नाउ दिस इज व्हाट कॉल्ड द वेव फॉर्म ऑफ करंट, दिस इज व्हाट कॉल्ड द वेव फॉर्म ऑफ करंट। ओके नाउ अगर मैं रेजिस्टिव लोड कंसीडर करके चलाऊं, रेजिस्टिव लोड, इन रेजिस्टिव लोड करंट इज इन फेज विथ वोल्टेज, करंट इज इन फेज विद वोल्टेज। ये सारी बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करनी है, तभी हम एमईटी समझ पाएंगे। ओके करंट इज इन फेज विद वोल्टेज मींस हमारी वेवफॉर्म आप देख सकते हो, ये हमारी ना वोल्टेज की वेवफॉर्म है। ओके सो हियर व्हाट आई मीन एक्चुअली, करंट इज इन फेज ऑफ वोल्टेज। ओके दैट मींस इफ both current as well as voltage reaches peak at the same time, दोनों सेम टाइम पे अपनी पिक वैल्यू रीच करेगी। अगर मैं बोलूं इन रेजिस्टिव लोड, इफ करंट इज मैक्सिमम देन यस वोल्टेज विल आल्सो बी मैक्सिमम, इफ करंट इज जीरो देन वोल्टेज विल जीरो, इफ करंट इज नेगेटिव देन वोल्टेज विल आल्सो नेगेटिव, मींस बोथ रीचेज
एट देयर पीक टाइम एट सेम टाइम, दोनों सेम टाइम पे अपनी पीक वैल्यू पर रीच करेंगे। ओके, आप देख सकते हो दिस इज व्हाट कॉल्ड पॉजिटिव करंट, मैक्सिमम करंट, सॉरी पॉजिटिव करंट, पॉजिटिव वोल्टेज, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम वोल्टेज। नाउ दिस both current and voltage is zero. Now this negative current, negative voltage, negative, positive. Now if I calculate instantaneous power over here, okay, what is instantaneous power? Last lectures में मैंने डिस्कस किया था, go and watch. Okay, instantaneous power हमारी क्या होती है? V into I, instant. Okay, instant. मैंने total more than 5 to 10 minutes instantaneous पावर डिस्कस किया था, गो एंड वॉच। ओके, अगर मैं बोलूं इंस्टेंटेनियस पावर मुझे कैलकुलेट करनी है एट एनी पॉइंट ऑफ दिस वेवफॉर्म, इस वेवफॉर्म में एनी पॉइंट पर हमें इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड करनी है। सी, अगर मैं पॉइंट 1, दिस इज व्हाट कॉल्ड पॉइंट 1, अगर पॉइंट 1 में मैं इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करूं तो यहाँ की करंट ओके मैं मेजर करूंगा एंड यहाँ की वोल्टेज मेजर करूंगा और दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, पॉजिटिव करंट, पॉजिटिव वोल्टेज, दैट इज पॉजिटिव पावर, दैट इज पॉजिटिव पावर। ये मेरी अब पावर की होगी, ये पावर की वेवफॉर्म है। नाउ अगेन नेगेटिव करंट, नेगेटिव वोल्टेज, अगर हमें इंस्टेंटेनियस पावर मेजर करनी है तो दोनों की हमें मल्टीप्लाई करेंगे, V into I, अगेन नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाइड बिकम पॉजिटिव, अगेन हमारी पॉजिटिव पावर। व्हाट इज द कंक्लूजन? यहां पर हमारी कंक्लूजन क्या है? मींस व्हाट, रेजिस्टिव लोड में पावर हमेशा पॉजिटिव होती है। दिस इज व्हाट कंक्लूजन। अब आपकी जो भी ऑनबोर्ड शिप्स में जो मेन जनरेटर है, इमरजेंसी जनरेटर, वहां से जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और जो भी हमारी नेविगेशनल लाइट उसे कंज्यूम कर रही है एंड जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल हीटर उसे कंज्यूम कर रही है, दैट इज व्हाट कॉल्ड पॉजिटिव पावर एंड दिस पावर इज ओनली कॉल्ड एक्टिव पावर। दिस पावर इज ओनली कॉल्ड एक्टिव पावर। ओके, ये हमारी इस पावर को हम एक्टिव पावर कहते हैं। क्लियर हो गया? तो आपकी एग्जांपल्स क्या है? नेविगेशनल लाइट्स, इलेक्ट्रिकल हीटर्स, ये हमारी एग्जांपल्स है। मेनी मोर एग्जांपल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस फ्यूचर्स वीडियो में आएगी। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे इंडक्टिव लोड। ओके, इंडक्टिव लोड पर हम बात करेंगे। ओके, अब हमारे इंडक्टिव लोड में हमारी क्या होती है? वोल्टेज एंड करंट यहां पर सेम फेज पे नहीं होते, इन फेज नहीं होती है हमारी, इनकी जो वेवफॉर्म होती है डिफरेंट होती है। दोनों में हमारी लीडिंग एंड लैगिंग की कॉन्सेप्ट यहां पर आती है। ओके, तो आप देखोगे सपोज अगर मैं वोल्टेज एंड करंट की वेवफॉर्म बनाऊं इंडक्टिव, नाउ मैंने इंडक्टिव कंसीडर किया है। ओके, इन इंडक्टिव लोड, अगर मैं इंडक्टिव लोड की बात करूं, अगर मैं यहां पर इंडक्टिव लोड में फर्स्ट ऑफ ऑल वोल्टेज लीड्स करंट बाय 90 डिग्री। ओके, वोल्टेज लीड्स करंट, सपोज ये हमारी करंट की वेवफॉर्म है, ये हमारी करंट की वेवफॉर्म है। नाउ व्हाट इज वेवफॉर्म ऑफ, अगर हम बात करें वोल्टेज की, ओके, नाउ दिस इज व्हाट वोल्टेज, इट स्टार्टेड मींस अगर हम बात करें तो ये अहेड है। ओके, वोल्टेज हमारी अहेड है करंट से 90 डिग्री। अब ये हमारी यहां से स्टार्ट हुई, ये हमारे यहां से स्टार्ट होगी। नाउ अगेन यहां पर भी मैं इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करूंगा। ओके, यहां पर भी मैं, ये हमारी क्या है? करंट है, ये हमारी क्या है? वोल्टेज है। नाउ एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे मैं इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करूंगा। अगेन इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल टू V into I। नाउ इफ आई कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस पावर एट दिस स्पेसिफिक पॉइंट, दैट इज करंट I एंड वोल्टेज corresponding to V, I1 V1। नाउ पावर इज इक्वल टू V1 I1, both V1 is also positive, I1 is also positive, that is here positive power. But now if I calculate instantaneous power at this point, okay, at point I2, voltage corresponding to I2, that is voltage is V2. Now power is V2 into I2. Now positive current and negative voltage. So positive into negative become negative power। तो यहां पर हमारी क्या है? पावर क्या आ रही है? नेगेटिव पावर आ रही है। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, दैट इज वन इज पॉजिटिव पावर एंड अनदर इज नेगेटिव पावर। सेम अगर मैं सेम कंसिडर करता हूं, कैपेसिटर की एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, ओके, मैं कैपेसिटर की एग्जांपल लेता हूं। सेम
मैं कैपेसिटर की एग्जांपल लेता हूं। कैपेसिटर में हमारी क्या होती है, करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री। ओके, सो दिस इज व्हाट कॉल्ड वोल्टेज। ओके, एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड करंट। दिस इज व्हाट कॉल्ड करंट। ओके, ओके, करंट। नाउ ये हमारी क्या है, ये हमारी वोल्टेज है, ये हमारी करंट है। नाउ अगर मैं इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करूं एट दिस पॉइंट, ओके, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमारी, इस वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग हमारी करंट आई आएगी, तो V1 I1 अगेन हमारी V1 I1 पॉजिटिव होगी। बट इन कैपेसिटर अगर मैं बात करूंगा इस पॉइंट पर, अगर मैं इस पॉइंट पर पावर, इंस्टेंटेनियस पावर अगर कैलकुलेट करो तो इसकी करस्पॉन्डिंग हमारी करंट ये आएगी, दैट इज V2 I2। अगेन V2 इज पॉजिटिव बट I2 इज नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव ऑलवेज नेगेटिव। ओके, सो हमारी V2 I2 दैट इज अगेन नेगेटिव। ये हमारी क्या है, नेगेटिव पावर है। नेगेटिव पावर मींस हमारी व्हाट, जो हमारी फ्लो होगी वो हमारी लोड टू सोर्स फ्लो होगी। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, हमारी लोड टू सोर्स कैसे फ्लो हो सकती है। ओके, तो मैं आपको बताता हूं, सारी चीजें आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेजिस्टिव में हम लोगों ने क्या देखा, रेजिस्टिव में हम लोगों ने बात किया दैट इज प्योरली रेजिस्टिव में हम लोगों ने बात किया जो हमारी पावर थी रिमेन्स पॉजिटिव। हमारी जो पावर की डायरेक्शन थी वो फिक्स थी, वो हमारी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही थी, हमारी सेम डायरेक्शन में थी, पॉजिटिव डायरेक्शन में थी। बट इन केस ऑफ इंडक्टिव एज वेल एज कैपेसिटिव, व्हाट इज इंडक्टर, हमारी इंडक्टर में हमारी क्या हो रही थी, जो हमारी वोल्टेज थी वो हमारी अहेड थी करंट में 90 डिग्री। बट हमारी कैपेसिटर में क्या है, ओके, अब हमारी कैपेसिटर में वोल्टेज जो है वो हमारी लैग है करंट से 90 डिग्री, और बोल सकते हैं करंट जो है 90 डिग्री लीड कर रही है हमारी वोल्टेज को। तो यहां पर इन दोनों में हमारी क्या हो रही है, पॉजिटिव पावर भी जनरेट हो रही है एंड नेगेटिव पावर भी जनरेट हो रही है। एंड जो भी हमारी पॉजिटिव पावर है, जो हमारी रेजिस्टिव में जो हमारी पॉजिटिव पावर थी वो हमारी होती है एक्टिव पावर, उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव पावर। एंड जो भी हमारी इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव में, जो भी हमारी इंडक्टिव एज वेल एज कैपेसिटिव में हमारी पॉजिटिव पावर जनरेट हो रही है, एंड वन मोर पावर इज जनरेटेड दैट इज रिएक्टिव पावर। ओके, यहां पर हमारी रिएक्टिव पावर जनरेट हो रही है। व्हाई रिएक्टिव पावर, बिकॉज ऑफ नेगेटिव पावर। ओके, यहां पर आप देख रहे हो नेगेटिव पावर। अगर मैं सपोज इसकी अगर मैं पावर की डायग्राम बनाऊं, ओके, तो आप देखोगे इसकी पावर की डायग्राम कुछ ऐसे होगी। ओके, अब हमारी क्या होगी, एक साइकिल पॉजिटिव होगी, साइकिल नेगेटिव होगी। ओके, पावर की हमारी ऐसे होगी, ये हमारी किसकी है, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस की, बट हमारी रेजिस्टिव की कैसे थी, ऐसे थी। ओके, तो पावर हमारी क्या हो रही है, इसकी डायरेक्शन हमारी फिक्स्ड है इन केस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव, बट इन केस ऑफ इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव हमारी जो पावर है वो हमारी डायरेक्शन चेंज कर रही है। ओके, तो हमारी नेगेटिव पावर, जो भी हमारी जो रिएक्टिव पावर जो होती है, ओके, रिएक्टिव पावर इज जस्ट लाइक अ पेंडुलम। ओके, अब पेंडुलम कैसे टू एंड फ्रो मोशंस करती है। ओके, टू एंड फ्रो मोशंस कर रही है बट कोई वर्क हो रही है, कोई भी वर्क नहीं हो रही है। सेम हमारी क्या है, रिएक्टिव पावर होती है। ओके, ये हमारी रिएक्टिव पावर जो है हमारी, इसकी यूजफुल वर्क इससे हमारी नहीं होती है। नाउ अब हम बात करेंगे इंडक्टिव पावर। ओके, या इंडक्टिव लोड, इंडक्टिव लोड। सोर्स हमारी सेम है, सोर्स हमारी ऑनबोर्ड सिस्टम, मेन जनरेटर, इमरजेंसी जनरेटर, जहां से हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो हमारी सोर्स है। गॉट इट, समझ रहे हो, सोर्स नॉट टू लोड। लोड हमारी क्या है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही है। ओके, सच एज नेविगेशनल लाइट्स, इलेक्ट्रिकल हीटर्स, हमारी मोटर्स, स्टार्टर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, ये हमारी क्या है, ये हमारी लोड्स है ऑनबोर्ड सिस्टम। ओके, डिफरेंट रिलेस, ओके, ये हमारी लोड है। ओके, सारी चीजों पे एक एक चीज डिस्कस करेंगे। बेसिक्स इलेक्ट्रिकल फियर विल एंड नाउ। ओके, इतने आपको क्लियर है। नाउ इन केस ऑफ मैं बात करूं कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर हमारी क्या कर रही है, हमारी सोर्स टू लोड भी है एंड लोड टू सोर्स भी है। सोर्स टू लोड दैट इज पॉजिटिव पावर, दैट इज पॉजिटिव पावर। मैंने यहां पर बताया पावर पॉजिटिव भी है, पावर नेगेटिव भी है। लोड टू सोर्स दैट इज नेगेटिव पावर। नाउ लोड टू सोर्स, अब हम आपको बताते हैं। आपने कैपेसिटर में ऐसा बहुत बार सुना होगा, कैपेसिटर स्टोर्ड एनर्जी। ओके, कैपेसिटर स्टोर्ड एनर्जी मीन्स व्हाट, मीन्स हमारी पावर फ्लो जो हो रही है सोर्स टू लोड है, तभी तो लोड, कैपेसिटर क्या है, लोड है। कैपेसिटर क्या है, लोड है। ओके, अगर मैं बोलूं कि लोड जो है
है ना, वो एनर्जी स्टोर्ड की हुई है, तो उसकी पावर फ्लो कहां से हो रही है? सोर्स से हो रही है। पावर इज फ्लोइंग फ्रॉम सोर्स टू लोड, दैट्स व्हाई एक्चुअली कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी। ओके, बट आपने ये भी टर्म सुना होगा, कैपेसिटर रिलीज एनर्जी। ओके, तो जब हमारी लोड टू सोर्स पावर फ्लो होती है तो उस टाइम हमारे कैपेसिटर रिलीज एनर्जी। सो दैट्स व्हाई कैपेसिटर इज अ पैसिव एलिमेंट। ओके, इट स्टोर्ड एनर्जी एज वेल एज इट डिलीवर द एनर्जी, वो दोनों काम करती है। ओके, तो आपको एग्जांपल क्लियर है? नाउ क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। मैंने आपको रेजिस्टिव लोड की एग्जांपल दे चुका हूं। इंडक्टिव लोड अब हमारी क्या है, सिर्फ में जो भी आपकी ट्रांसफॉर्मर्स है ना, स्टार्टर्स, मोटर्स, ओके, ये सब हमारी क्या है? इंडक्टिव लोड है। ओके, इंडक्टिव लोड। नाउ कैपेसिटिव लोड। कैपेसिटिव लोड जब मैं आपको ब्रशलेस अल्टरनेटर पढ़ाऊंगा, जो हमारी फ्यूचर वीडियोस आने वाली मरीन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में, वहां पर आपने देखा होगा ब्रशलेस अल्टरनेटर्स में क्या होती है, आपने देखा होगा बैंक्स ऑफ कैपेसिटर लगी हुई होती है। ओके, आपने ऐसा देखा होगा बैंक्स ऑफ कैपेसिटर। भाई समझ ही नहीं आता भाई है क्या। ओके, बैंक्स ऑफ कैपेसिटर इसे करते हैं। ओके, तो ये हमारी कैपेसिटिव लोड है। ओके, जो भी हमारी मेन जनरेटर, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सारी चीजें इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की पूरा ब्लॉक के साथ आऊंगा मैं। ओके, जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वो हमारी लोड पे जा रही है, एंड वन ऑफ द कैपेसिटिव लोड दैट इज कैपेसिटर बैंक। ओके, ये हमारी कैपेसिटर बैंक है, एंड हमारी स्टार्टिंग कैपेसिटर्स, मोटर्स भी होती है। ओके, सारी चीजें पर मैं आऊंगा। ओके, इतनी आपको क्लियर है? नाउ अब हमारी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है व्हाट इज पावर फैक्टर। ओके, अब हम बात करेंगे पावर फैक्टर्स पे। ओके, सो बिफोर गोइंग टू पावर फैक्टर, मैं आपको एक वन मोर पावर इंट्रोड्यूस करूंगा, दैट इज अपैरेंट पावर। दैट इज अपैरेंट पावर। सो व्हाट इज अपैरेंट पावर? अपैरेंट पावर इज द समेशन ऑफ एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर। जो भी हमारी एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर जो हमारी प्रोड्यूस हो रही है वो हमारी अपैरेंट पावर है। तो अपैरेंट पावर हमारी कहां, सपोज मैं बात करूं, ये हमारी 220, सपोज ये हमारी 440 वोल्ट है। ओके, ये हमारे 440 वोल्टेज सोर्स है, यहां पर हम लोगों ने लोड कनेक्ट किया है। ओके, मैं बोलूं ये लोड हमारी रेजिस्टिव लोड है, एंड वन मोर लोड दैट इज व्हाट कॉल्ड, मैं यहां पर बोलूं ये हमारी क्या है, सपोज दिस इज कैपेसिटिव लोड, ये हमारी कैपेसिटिव लोड है। अब हमारी जो वोल्टेज है यहां पर हमारी क्या होगी, आई आर ड्रॉप होगी वोल्टेज, एग्री, यहां पर आई आर ड्रॉप होगी। सपोज मैं इसे इंडक्टिव लोड लेकर चलता हूं, ये हमारी इंडक्टिव लोड है। ओके, यहां पर करंट अगर आई आर मीन्स वोल्टेज हमारी आई आर है। ओके, यहां पर हमारी वोल्टेज आई एल होगी। ओके, नाउ अब मैं बोलूंगा यहां पर जो हमारी पावर है ये हमारी एक्टिव पावर कंज्यूम कर रही है, एंड ये हमारी रिएक्टिव पावर कंज्यूम कर रही है। ओके, ये हमारी एक्टिव पावर कंज्यूम कर रही है एंड ये हमारी रिएक्टिव पावर कंज्यूम कर रही है। ऐसे ही हम बोलेंगे ना। अब हम बात करेंगे दोनों की समेशन जो होती है वो हमारी क्या होती है, अपैरेंट पावर। ओके, अगर मैं यहाँ पर अपैरेंट पावर की बात करूं, ओके, तो सबसे पहले रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हम करते हैं। ओके, जो हमारी जेड होती है। ओके, जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ इस टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए मैं वन मोर टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा, पावर फैक्टर। नाउ व्हाट इज पावर फैक्टर? ओके, व्हाट इज एक्चुअली पावर फैक्टर? सपोज मैंने आपको बोला पावर फैक्टर इज इक्वल टू 0.85। आपने ऑनबोर्ड सिस्टम में एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर देखा। ओके, एंड टू सिंगल फेज इंडक्शन मोटर मींस वहां पर क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन लोड। एक्चुअली एट नो लोड दैट इज पावर फैक्टर इज इक्वल टू 0.2, एट हाई लोड पावर फैक्टर इज इक्वल टू 0.85 और 0.90। ओके, सो ये हमारे लोड पे डिपेंड करता है। ओके, सपोज मैंने पावर फैक्टर कंसीडर कर रहा हूं 0.85, पावर फैक्टर इज इक्वल टू 0.85। नाउ हाउ कैन वी डिफाइन पावर फैक्टर इज इक्वल टू 0.85? हम इस पर बात करेंगे। ओके, पावर फैक्टर 0.85 एक्चुअली है क्या? इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकली हम कैसे डिफाइन करेंगे? अगर आपको इंटरव्यू में पूछते हैं व्हाट इज पावर फैक्टर, तो आप टेक्निकली कैसे से डिफाइन करेगा? आपको ऐसा नहीं बोलना इट इज द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ वोल्टेज एंड करंट। नो, या दिस मे बी ट्रू, बट टेक्निकली रिप्रेजेंट हमें ऐसे नहीं करना है ना। आपको ऐसे बोलना है कि पावर फैक्टर इज cos phi एंड विच इज इक्वल टू आर बाय जेड, ये तो पूरी रॉन्ग है। ओके, सो हाउ टू रिप्रेजेंट पावर फैक्टर इज इक्वल टू 0.85? ओके, सबसे पहले पावर फैक्टर होती क्या? व्हाट इज पावर फैक्टर? पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर टू द अपैरेंट पावर। पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर टू द अपैरेंट पावर। दिस इज टेक्निकली एक्सेप्टेड आंसर। ओके, पावर फैक्टर इज इक्वल टू एक्टिव पावर बाय अपैरेंट पावर मींस व्हाट, दैट इज एक्टिव पावर बाय
एक्टिव पावर बाय, नाउ अपेरेंट पावर हमारे क्या, एक्टिव प्लस रिएक्टिव, एक्टिव प्लस एक्टिव, अरे एक मिनट, एक्चुअली पावर फैक्टर इज इक्वल टू व्हाट, एक्टिव प्लस रिएक्टिव। ओके, जो हमारी पावर फैक्टर है वो हमारी एक्टिव, नीचे जो हमारी आएगी दैट इज पावर फैक्टर, पावर फैक्टर इज इक्वल टू एक्टिव पावर बाय अपैरेंट पावर। ओके, नाउ अब मैं बोल रहा हूं पावर फैक्टर इज इक्वल टू 0.85। नाउ एक्टिव पावर हमारी क्या है, जो हमारी यूजफुल पावर है, एंड जो हमारी अपैरेंट पावर हमारी क्या आ रही है, एक्टिव पावर भी आ रही है, रिएक्टिव पावर भी आ रहा है, बट रिएक्टिव पावर क्या है, वो हमारी यूजफुल पावर नहीं है। मींस ये जो हमारी जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर, ऐसे लिख सकते हैं। बट ना अगर मैं बोल रहा हूं पावर फैक्टर इज 0.85 मींस व्हाट, मींस 85%, ओके 85% ऑफ टोटल पावर इज कंज्यूम्ड। ओके, जो हमारी टोटल पावर है, ओके 100% जो हमारी पावर है उसकी हमारी 85% कंज्यूम हो रही है, यूटिलाइज हो रही है, एंड 15% जो है वो हमारी रिएक्टिव पावर है। ओके, वो हमारी बोल सकते हो हमारी वेस्ट हो रही है। तो हमारी क्या बोलूंगा मैं, 85% हमारी पावर कंज्यूम्ड बाय सर्किट, ओके वो हमारी यूजफुल पावर है। दिस इज व्हाट कॉल्ड एक्चुअली द डेफिनेशंस ऑफ पावर फैक्टर। ओके, जो हमारी 15% वो हमारी रिएक्टिव पावर। और हाउ कैन वी डिफाइन पावर फैक्टर, पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर टू द अपैरेंट पावर। एक्टिव पावर हमारी क्या है, यूजफुल पावर है, अपैरेंट पावर में हमारी क्या है, एक्टिव प्लस रिएक्टिव, बट जो हमारी रिएक्टिव वो हमारी यूजफुल पावर नहीं है। ओके, तब आपको समझ जाना है, सपोज आपने कोई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर देखा, 3 फेज इंडक्शन मोटर देखा, वहां पर आपने उसकी पावर फैक्टर की वैल्यू 0.8 देखा, तो आप समझो 80% जो है आउट ऑफ 100%, 80% ये जो है पावर जो है कंज्यूम हो रही है, यूजफुल पावर है, इसका मतलब ये है। ओके, सो आई होप पावर फैक्टर आपको क्लियर हो गया। इंटरव्यू में आपसे जब भी पावर फैक्टर पूछा जाए तो इट इज द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर टू द अपैरेंट पावर, ये आपको डेफिनेशंस बोलनी है। एंड इसकी ट्रायंगल रिप्रेजेंटेशंस होती है। ओके, ये हमारी रिएक्टिव पावर होती है, ओके ये हमारी एक्टिव पावर होती है, एंड ये हमारी अपैरेंट पावर होती है। ओके, एंड अपैरेंट पावर जो मैं लिखा हूं, सपोर्ट अपैरेंट पावर जो होता है रूट अंडर एक्टिव प्लस रूट अंडर रिएक्टिव मींस स्क्वायर, रूट अंडर एक्टिव स्क्वायर प्लस रूट अंडर रिएक्टिव स्क्वायर, जो मैं ये लिखा हूं। ओके, इसलिए एक्चुअली हम आर बाय जेड बोलते हैं, cos phi इक्वल टू आर बाय जेड। ओके, और एक्टिव पावर की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें, मैथमेटिकल्स कुछ आपको अप्रोच बता देता हूं। एक्टिव पावर की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वी आई cos phi, एंड हम रिएक्टिव पावर की अगर वैल्यू करेंगे तो बी इंटू आई इंटू साइन phi। ओके, ये सारी चीजें आप मैथमेटिकल अप्रोच से मैं आपको बता दिया। आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, आज हम लोगों ने देखा एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, दोनों में डिफरेंस देखा, एंड हम लोगों ने बात किया अपैरेंट पावर पर। ओके, cos phi अपैरेंट पावर पे बात किया, पावर फैक्टर पे बात किया, पावर फैक्टर डिफाइन किया। नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं ग्लोब डायग्राम के साथ आऊंगा। ओके, मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, एक्टिव रिएक्टिव पावर की एप्लीकेशंस कैसे ऑनबोर्ड चिप्स में आती है। ओके, सो प्लीज like, share and subscribe to my channel. Let's learn and grow together with Marin tutor. Thank you.